Okay, in last session, we have completed the troubleshooting part related to the PLC, HMI, drives, right? And along with that, we had a discussion on the PLC, Siemens PLC hardware as well. So today we are going to cover the PLC wiring, Siemens PLC wiring, and then we will coming toward the opening process. सीमेंस के जो पीएलसी वायरिंग है, मतलब हर एक पीएलसी के लिए वायरिंग इज द इजिएस्ट पार्ट इन एनी पीएलसी. But I will just cover the few examples so that you people will get to know that how will be the PLC wiring, right? तो हम देखेंगे अभी किस तरह से वायरिंग किया जाता है, right? Okay. So now here we have some equipments like this is the SMPS, right? Everyone know what is SMPS, switch mode power supply. This will provide 24 volt DC power supply to our PLC. This is the required power supply of Siemens PLC. Now we have some buttons, okay, start push buttons, stop push buttons, right? Then we have the PNP sensor, that is proximity sensor, limit switch, and RTD, right? Okay, it's a very simple connection. The same way you can do it for the rest of the input devices. Exactly same way. Nothing is changed. Nothing will be the different. सब कुछ सेम ही है. जो अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा the same connections will be for the rest of the inputs. आगे हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो प्रोजेक्ट्स के अंदर हम वो कवर करेंगे, राइट? So we don't have to waste our time here. We will have to immediately start with the PLC programming and all, right? Okay. So this is just for the initial preparation कि किस तरह से हम कर सकते हैं, right? Wiring and all. Okay. So now as per the discussion we know that कि यहाँ पे ये जो हमारा SMPS है, SMPS को हमें 230 वोल्ट AC पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है, राइट? So simply you just have to make provision so that you will provide 230 volt AC power supply to your SMPS, and आउटपुट में आपको 24 वोल्ट DC पावर सप्लाई मिलेगा, राइट? ओके, सो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं. सो यू कैन पिक any one positive and any one negative to provide 24 volt DC power supply to our Siemens. Here it is, right? You can see L plus L and M, right? So L means the positive 24 volt DC power supply here, and the next one is the common, right? We can see it common. Okay, so now here you can see 24 volt this one, and this one will be the negative 24, right? Positive and negative 24 volt. As I told you in last session that when you provide the power supply here and here, no need to provide here again, right? These are internal looping. You can simply connect or use this terminal to provide the positive 24 volt DC power supply to your input devices. Okay, these are all input devices. Okay, yeah. So initially what we'll do, we are using the positive, this one, positive V. Here it is, we are connecting it here. Okay, so let me change the color. I will try my best to show you some realistic. Okay, okay, so here we have connected positive 24 volt. Now here we are selecting this one to provide the negative 24 volt like this. Okay, so we have successfully provided the power supply to the PLC. Now the one more thing is here, ground, right? So ground is here, so you can make the connection like this. On the output of the SMPS you are not getting the ground. जिन्होंने SMPS देखा है उनको ये चीज़ पता होंगी, राइट? और नहीं, जिन्होंने देखा नहीं है, यू कैन सिंपली चेक दिस सिंबल, राइट? इसके अंदर आउटपुट एंड में ग्राउंड नहीं है, तो यू कैन पिक द ग्राउंड टर्मिनल फ्रॉम इनपुट, दैट इज अलाउड. ओके, सो लाइक दिस. सो वी हैव मेड द प्रोविजन. ग्राउंड जो है वो हर एक PLC में होता ही है. सो कुछ PLC को ग्राउंड प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन अगर ग्राउंड टर्मिनल दिया है तो कंपल्सरी मेक द कनेक्शन. ओके, डोंट स्किप इट. या, सो नाउ लेट अस कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट.
this is very easiest part which I'm going to tell you right now. The first thing you can see, यहाँ पे हमारे पुश बटन है, राइट, स्टॉप पुश एंड स्टार्ट पुश बटन. तो अभी कोई भी इनपुट जब आप पिक करेंगे तो द फर्स्ट थिंग्स कम्स इन योर माइंड, दैट इज द वन टर्मिनल दैट शुड बी कनेक्टेड टू द पीएलसी टर्मिनल. ओके, पीएलसी के ये जो इनपुट सेक्शन है, जैसे कि अभी ये जो इनपुट जो आप देख पा रहे हैं, डिजिटल दोनों पुश बटन है, राइट, और ये दोनों के दोनों आपके डिजिटल्स हैं. अलॉन्ग विद दैट दिस इज द प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये भी डिजिटल इनपुट है, राइट. अब यहाँ पे एक लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच भी आपका डिजिटल ही है. उसके बाद यहाँ पे आरटीडी है, आरटीडी जो है आपका एनालॉग कैटेगरी में आता है, राइट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर. इट विल हेल्प फुल फॉर डिटेक्टिंग द टेम्परेचर, राइट. ओके, सो राइट नाउ this is the digital section. So as per the input category we will have to connect the input to the that particular section. जैसे कि अभी यहाँ पे इनमें से आप कोई भी एक टर्मिनल पिक कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल, राइट. सो हियर आई एम पिकिंग दिस वन, द फर्स्ट वन, टू द जीरो टर्मिनल, राइट. यू कैन सी, तो यहाँ पे जो जीरो टर्मिनल है, यू कैन ऑब्जर्व दिस टर्मिनल, राइट. ये पीएलसी का जीरो टर्मिनल है. वहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक पुश बटन कनेक्ट कर दिया है. ओके, सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ इट इफ पॉसिबल, विल प्रोवाइड दिस. ओके, नाउ ऑब्वियसली यू कैन सी हियर, सो द 1 amp मीन्स द कॉमन, मीन्स negative 24 volt DC. Okay, negative 24 volt DC. If you want, you can directly connect this 1 amp to this amp, or this to this also. This is also correct. These two connections are correct, and this one is also correct, right? Okay, because these are internally looping. You don't need to provide separate power supply here. Okay, yeah. So now here this second terminal will be connected to the positive 24 volt, because हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट जो है, जो 1, ये हमने पीएलसी के जीरो टर्मिनल को प्रोवाइड किया है, राइट. तो इसका एड्रेस क्या बनेगा, राइट. इमीडिएटली आफ्टर दिस कनेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एड्रेसिंग एज वेल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट. तो पहले कनेक्शन समझ लेते हैं, फिर एड्रेसिंग की तरफ जाएंगे. ओके, नहीं तो साइमल्टेनियसली भी जा सकते हैं. जस्ट ए मिनट, लेट मी add one slide here so that we will discuss it simultaneously. Wait, here it is, fine. Okay, let me just change the name here quickly. Addressing, okay, yeah. So अभी देखिए, अभी what we have done right now, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे पुश बटन कनेक्ट किया, राइट. किसको कनेक्ट किया है, जीरो टर्मिनल को कनेक्ट किया हुआ है. तो व्हाट विल बी द एड्रेस फॉर दिस पर्टिकुलर पुश बटन, एड्रेस किस तरह से होगा, राइट. जो बिगिनर है उनके लिए ये बेसिक में कवर कर रहा हूँ, राइट. तो प्लीज कीप पेशेंस, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स हैं, दे डोंट इवन नो दिस थिंग्स ऑल्सो, राइट. तो इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ. ओके, देखिए अभी जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो जीरो टर्मिनल है उसको हमने पुश बटन का कनेक्शन किया. तो व्हाट विल बी द एड्रेस, योर एड्रेस विल बी I0.0, सॉरी, दिस विल बी I0.0, दिस विल बी द इनपुट. ओके, दिस विल बी द एड्रेस फॉर दैट पुश बटन. जैसे कि उसको हम नाम देते हैं स्टॉप पुश बटन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. तो स्टॉप पुश बटन का हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है, तो उसका एड्रेस क्या है, I0.0. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये I0.0 क्या होता है. यहाँ पे I का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, I मीन्स इनपुट, ये आपका इनपुट एड्रेस रहेगा. उसके बाद जो जीरो है, जीरो का मतलब है आपका बाइट. क्या मतलब उसका, बाइट. ओके, तो मतलब ये आपका बाइट नंबर रहेगा. एंड लास्ट वन जो है ये आपका रहेगा बीट नंबर. ओके, दिस इज द बीट नंबर. ओके, बीट नंबर. तो अभी यहाँ पे 1 बाइट मतलब कितना होता है, लेट मी जस्ट टेल यू राइट अवे. हियर आई एम राइटिंग 1 बाइट. सबको पता है 1 बाइट मतलब होता है 8 बिट, राइट. 8 बिट्स मतलब ये जो एड्रेस जो आप देख रहे हैं, विच वन, दिस एड्रेस, लेट मी हाईलाइट. ये जो एड्रेस आप जो देख रहे हैं,
इस एड्रेस में टोटल आपको 8 इनपुट एड्रेस मिलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, हियर इट इज राइट, 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 means 0 to 7 means what? 8 input addresses. How many? 8 input addresses, right? Means for the stop push button our address is I0.0. So now let us connect the next one. हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. यहाँ पे ये जो थर्ड जो स्टार्ट पुश बटन जो है उसको हम कनेक्ट करेंगे जो फर्स्ट टर्मिनल जो है उसको, जैसे कि यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है. तो व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ दिस स्टार्ट पुश बटन? सो लेट मी राइट इट हियर. सो एड्रेस विल बी I0.1 क्योंकि वो हमने फर्स्ट टर्मिनल को कनेक्ट किया इसलिए. सो दिस विल बी द स्टार्ट पुश बटन. मतलब जो टर्मिनल जो होता है उसको हम पीएलसी के अंदर बीट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बीट. जैसे कि यहाँ पे दिस इज टर्मिनल, लेकिन जब हम एड्रेसिंग करते हैं तो एड्रेसिंग के अंदर उसको बोला जाता है बीट. मतलब ये बीट है, दिस इज ऑल्सो द बीट, राइट? दिस इज ऑल्सो द बीट. ओके, सो नाउ सिमिलरली वी हैव टू राइट द एड्रेसेस. वेरी सिंपल, राइट? सो लेट मी कनेक्ट द अनदर इनपुट्स. जैसे कि अभी ये हमारा जो सेंसर है, यू कैन जस्ट चेक इट केयरफुली. ये हमारा PNP है, राइट? PNP के केस में यू कैन चेक द मिडल टर्मिनल, दैट इज द +1, राइट? +1, right? Means this middle terminal will provide pulse to the PLC and that pulse will be counted by using counter, right? तो ये जो PNP है इसको हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव 24 वोल्ट DC दिया है और यहाँ पे निगेटिव 24 वोल्ट DC दिया गया है, राइट? ये सिंपल कनेक्शन है, जैसे कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव के कनेक्शन किए थे. द सेम वे यू हैव टू कनेक्ट इट. बट व्हाट टर्मिनल विल गो टू द PLC? तो मिडल टर्मिनल जो है वो PLC को जाने वाला है. तो हम वो कनेक्ट करेंगे सेकंड नंबर को लाइक दिस. ओके, let me connect it again. Anyway, थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, या ओके, तो हमने अभी यहाँ पे 2 कनेक्ट किया है. उसके बाद अभी नेक्स्ट जो है ये हमारा लिमिट स्विच है. लिमिट स्विच का कौन सा कनेक्शन करना है वो डिपेंड करता है. तो लेट अस कनेक्ट द एनी वन. जैसे कि हमें यहाँ पे NO कनेक्शन करना है या NC कनेक्शन करना है. तो लेट अस कनेक्ट द NO. NO मीन्स व्हाट? नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, राइट? NC मीन्स व्हाट? नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट. सो लेट मी कनेक्ट इट टू दिस थर्ड नंबर लाइक दिस. ओके, दिस इज डन. नाउ for this second number terminal and third number terminal your address will be, so here I am writing the address. Where is the text? Okay, so your address will be I0.2 and the next one will be I0.3, right? These are the addresses. Means this is for the this is for the proximity sensor, PNP type sensor. We can see PNP sensor, and this will be for limit switch, right? Limit switch, right? Okay, so here you can see this is how we have connected the 4 digital inputs to the digital section with addresses. यहाँ पे हमें एड्रेसेस भी समझ में आ गए, राइट? किस तरह से एड्रेसिंग किए जाते हैं. I मतलब इनपुट होता है, 0 मतलब बाइट नंबर होता है, एंड लास्ट वन विल बी द बीट नंबर, राइट? लाइकवाइज. Okay, the same way you can keep on adding the number of inputs as per your requirement. Okay, now coming toward the next part, that is about the analog connection. तो अभी जो एनालॉग के एड्रेसेस जो होते हैं that will be different. जैसे कि अभी हमने I देखा, तो आपका जो एनालॉग सेक्शन होता है उसके लिए एड्रेसेस अलग होते हैं, IW64, IW66. वो हम आगे देखने वाले हैं बाद में एनालॉग के टाइप में. अभी फिलहाल के लिए वी आर जस्ट गोइंग विद द डिजिटल पार्ट. ओके, तो अगेन द सेम थिंग हियर यू कैन सी, जैसे कि ये हमारा RTD है
तो इसका एक टर्मिनल जो है ऑब्वियसली डिजिटल इनपुट को जाने वाला है, और जो दूसरा जो है वो यू नो वेरी वेल राइट, इट गोज टू द पॉजिटिव 24 राइट। तो ये जो हम आरटीडी यूज कर रहे हैं उसका जो पावर सप्लाई जो है वो है पॉजिटिव 24 डीसी। द रिक्वायर्ड पावर सप्लाई फॉर दिस आरटीडी is 24 volt DC power supply. Okay, so now we'll do one thing. We are quickly connecting this terminal to the 0, right? So the addresses for analog is completely different. For the compact and for the modular is completely different. Okay, so we will discuss that part when we start with the analog, right? हमें ये merge नहीं करना है, पहले हम डिजिटल खत्म करेंगे फिर एनालॉग में जाएंगे। Okay. सो नाउ वी हैव कनेक्टेड वन टर्मिनल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हर एक इनपुट का एक टर्मिनल हमने पीएलसी को कनेक्ट किया हुआ है। अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो वी कैन नॉट एबल टू रीड द सिग्नल्स विच आर कमिंग फ्रॉम द फील्ड इनपुट डिवाइस। इनको फील्ड इनपुट डिवाइसेस बोला जाता है, राइट? फील्ड में यूज किए जाते हैं। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट टर्मिनल जो है वो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, दैट इज हियर। द सेकंड टर्मिनल विल गो टू द positive 24 volt, right? Positive 24 volt likewise. So let me bring it. Positive 24 हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली यू कैन सी, जैसे कि अभी ये जो कनेक्शन जो है सेकंड टर्मिनल वो कहाँ पे जाने वाला है? पॉजिटिव 24 वोल्ट को ही जाने वाला है, राइट? बिकॉज यहाँ पे कॉमन दिया हुआ है, राइट? यहाँ पे क्या दिया हुआ है उन्होंने? कॉमन दिया हुआ है, राइट? मतलब दूसरा टर्मिनल जो हो कॉमन को नहीं जाएगा। सिंपल है, इनपुट आउटपुट के कनेक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट? बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग कंप्लीट सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी चेंज नहीं है। तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं बनती यहाँ पे, राइट? एक्चुअली ये कनेक्शंस बहुत इजी है, मैं तो लेने ही नहीं वाला था, लेकिन यहाँ पे बिगिनर्स भी है उनके लिए ये कनेक्शंस बता रहा हूँ। ओके, तो अभी देखिए जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए द सेकंड वन विल आल्सो यू कैन कनेक्ट इट हियर लाइक दिस, इट इज अलाउड, यू कैन कनेक्ट इट लाइक दिस, और इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट इट हियर, बट जस्ट टू अवॉइड द complexity at the same terminal you can just connect it like this. This is also allowed, okay, no problem. So now like this you can connect. Okay, just a moment. Okay, now similarly you can see this one positive go to the let me adjust. In this case it is quite difficult to connect थोड़ा difficult हो जाता है, लेकिन you can understand, right? Just try to understand. Okay, I'm just trying to connect it like this. Okay, no problem, like this I have connected, it is also right, no problem. Okay, so now similarly यहाँ पे जो 24 वोल्ट जो है निगेटिव, वो हम निगेटिव को कनेक्ट कर देंगे, that will be here common, right? So let me change the color red. Okay, similarly you can see about the common 1 amp, right? This 1 amp, this 1 amp will go to the this negative, right? Like this you can connect, or if you want you can connect it like this. Here I'm connecting from down, but in actual you have to connect it here. Just for understanding I'm connecting it here, 1 amp to 1 amp connection. Okay, yeah, this is done. Now again the next thing, that is you will have to make the connection, you will have to make the connection to this 2M as well and this 3M as well. Here it is, okay, like this. And for the RTD, the next, this will go to the positive 24 volt like this. Now this is done. Okay, this is very simple connection, you can see, very simple connection. Now for the limit switch, it is remaining, this common will go to the positive 24 volt, right? No need of any confusion, don't connect this common to this common, right? Okay, we have already provided common here. Okay, so you can directly connect this to the positive 24 volt like this. Okay, so now the connections are done successfully. So this is how you can do the connection. So now connection जो है आप देख पा रहे हैं कि we have taken some selected inputs, right? Okay, but
Similarly, what you can do, you can prepare your own symbols. Every time I'm telling the participant that you can prepare your own symbols, okay, like this. आप खुद के इस तरह के symbols बनाइए. You can practice at home. Similarly, you can do the symbol for the encoders also, the photolytic sensors also. There are so many other sensors, right? You can just work on it. So as per the commitment, what I will do, I have prepared the list of almost all the sensors, wherein I have added specification, everything, application and all, right? So that I will share that list with you when we will start with the application. Okay, yeah. So now the connections, this is how you can do the connection for the rest of the input, digital inputs and analog inputs as well, right? Make sure that any one terminal that should be connected to the PLC, otherwise the signal will not be provided to the PLC. Okay, signal PLC को provide नहीं किया जाएगा. Okay, this is the simple thing, right? Okay. Sandeep sir is asking that for compact and modular PLC addressing is different. Sir, simply see, different means what? When you select the compact type CPU module, in that CPU module you will get the address directly. Okay, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे I0.0 से स्टार्ट किया है फॉर एग्जाम्पल. ओके, और आपने कॉम्पैक्ट टाइप PLC सिलेक्ट किया है. ओके, लेट मी आंसर हिम क्विकली. जैसे कि आपने कॉम्पैक्ट टाइप PLC अपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, मतलब CPU है आपका कॉम्पैक्ट, जिसमें इनबिल्ट आपको इनपुट्स मिल जाता है. तो कभी कभी आपके जो इनपुट एड्रेस होते हैं दैट विल स्टार्ट फ्रॉम I8.0 ऑल्सो, नॉट फ्रॉम AI0.0. इस तरह के एड्रेसेस होते हैं. तो इसलिए मैं बोला कि कॉम्पैक्ट टाइप PLC के जो एड्रेस होते हैं वो अलग होते हैं. अलग मतलब CPU में जो दिए हुए हैं वही आपको यूज करने होते हैं. यू कैन नॉट चेंज इट. ओके, आई होप यू गॉट इट राइट. और मॉड्यूलर के केस में वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम जीरो. ओके, I0.0, I0.1 लाइकवाइज. बट इन कॉम्पैक्ट के केस में दैट इज स्पेसिफिक और वो प्रोवाइड किए जाते हैं आपके मैन्युफैक्चरर के साइड से. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग फॉर दैट. ओके, Rupesh sir, can we provide this type of? Yeah, sure sir, definitely we will share. Okay, Ramesh sir, AC DC relay, so power supply given 20. Yeah, correct. Okay, fine. Yeah, let us go ahead. Okay. So now here you can see, so as per the addresses, let me just open the software TRA portal. Okay, so now as per the selection of your CPU, you will have to go with the addresses. तो addresses कहाँ पे चेक करने, राइट? तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि हमें तो addresses पता ही नहीं है कौन सा एड्रेस देना है, राइट? तो वो कहाँ पे ढूंढने हैं वो भी अब मैं बता दूंगा, हाउ टू चेक द एड्रेसेस. ओके, फाइन. उसके बाद देखिए, अभी जैसे कि हमने अभी इनपुट के बारे में देखा. सो नाउ कमिंग टुवर्ड द आउटपुट. अभी जो आउटपुट के कनेक्शन जो है, लेट अस कंसिडर दैट कि हमने अभी यहाँ पे पावर सप्लाई ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि यहाँ पे. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड पावर सप्लाई हियर अगेन. ओके, मेक द कनेक्शन. सो वी आर जस्ट कंसिडरिंग दैट कि यहाँ पे हमने यही कनेक्शंस रिपीट किए हैं जो हमने यहाँ पे किए हुए हैं, राइट? तो लेट अस कमिंग टुवर्ड द आउटपुट टर्मिनल. तो जो आउटपुट टर्मिनल जो है उसके कनेक्शंस कैसे करने हैं, राइट? उसके कनेक्शंस हमें किस तरह से करने होंगे, ठीक है? तो द थिंग इज वेरी क्लियर. आई हैव जस्ट यूज द LED इंडिकेटर, यू कैन सी. तो सबसे पहले आपको एक चीज मॉनिटर करना है, दैट इज दिस 1L, राइट? यहाँ पे कॉमन नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपको लाइन दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? लाइन. ओके, दिस इज लाइन. ओके, सो नाउ यू कैन जस्ट चेक. वेट, व्हाट इज हैपनिंग? जस्ट अ मोमेंट. ओके, तो यहाँ पे 1L मतलब यहाँ पे आपको पॉजिटिव 24 वोल्ट DC पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है, ना कि कॉमन. ओके, ना कि कॉमन, क्योंकि यहाँ पे 1M दिया हुआ था. दैट इज रीजन वी हैव connected it to the common, but right now it is 1L. check the thing carefully, क्योंकि हम अभी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, इसलिए आप नोटिस कर पा रहे हैं, लेकिन जब हार्डवेयर देखते हैं तो उस केस में मैक्सिमम कन्फ्यूजन होता है, राइट?
लेकिन इस केस में कन्फ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं होती है, सब चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ जाती हैं, राइट। ओके, तो अभी एज पर द डिस्कशन फॉर द डिजिटल इनपुट सेक्शन, द सेम वे यू कैन डू फॉर द डिजिटल आउटपुट। तो इसका भी एक एक टर्मिनल हमें आउटपुट को कनेक्ट करना है, जस्ट कीप इन माइंड। ओके ओके, जैसे कि अभी हम यहाँ पे एक टर्मिनल पिक करेंगे एंड इट विल बी कनेक्टेड लाइक दिस, you are connected. Similarly you can do it for the rest of the output. अभी सेम ही है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ, सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे एड्रेसेस बताना है इसीलिए। जैसे कि अभी मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, वेयर लेट अस कनेक्टेड हियर। ओके, तो ये वाला हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ओके, तो अभी इसके एड्रेसेस जानते कि व्हाट विल बी द एड्रेस फॉर दिस पर्टिकुलर टर्मिनल। तो अभी आउटपुट के जो एड्रेसेस हैं वो आउटपुट एड्रेसेस कैसे रहेंगे, लेट मी प्रोवाइड द नेम, दीज आर द इनपुट, ओके दीज आर द इनपुट, जस्ट अ मोमेंट, इनपुट एड्रेसेस, input addresses. So now similarly we'll do it for the output. Okay, output addresses. So now for the output you just need to make small change, that is the Q, instead of I here it will be Q. Q means output. Okay, जैसे कि बाकी PLC में Y यूज किया जाता है, जैसे कि मित्सुबिशी डेल्टा है, राइट, आलम ब्रैडली के अंदर O यूज़ किया जाता है। ओके, डिफरेंट सिम्बॉल्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग ये सिम्बॉल्स चेंज हो जाते हैं। ओके ओके, जैसे कि अभी हियर विल बी द Q एंड दिस Q इज द आउटपुट। ओके, दिस Q विल बी द आउटपुट। द रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी सेम, राइट, बाइट नंबर, बीट नंबर, राइट, 1 बाइट मीन्स 8 बीट। सो नाउ यहाँ पे हमने जो जीरो टर्मिनल जो है दिस वन, यहाँ पे हमने एक एलईडी इंडिकेटर कनेक्ट किया हुआ है। सो लेट मी जस्ट चेंज, कौन सा एलईडी इंडिकेटर है वो, कलर ग्रीन, राइट। सो लेट मी चेंज दिस विल बी द ग्रीन इंडिकेटर, यू कैन जस्ट पुट ग्रीन इंडिकेटर। और नीचे जो है आई थिंक इट इज रेड, नेक्स्ट वन इज द रेड, राइट। तो रेड के लिए हमने 1 ही दिया हुआ है, सो इट विल बी सेम, रेड इंडिकेटर, red indicator. Okay, so now coming toward the third number LED indicator, अभी इसका एड्रेस क्या रहेगा, you can just check it carefully। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे 1L दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2L है, राइट, मीन्स दिस 2 टर्मिनल शुड बी शॉर्टेड, ये शॉर्ट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 8, ये कितने हो गए, 8, मतलब जो I0 जो है उसके अंदर सिर्फ 8 इनपुट्स आते हैं, लेकिन हमने इसको कनेक्ट किया नेक्स्ट 0, जैसे कि DQB। ओके, DQB का मतलब होता है नेक्स्ट बाइट, क्या होता है, नेक्स्ट बाइट। अब ये फर्स्ट बाइट हुआ 0 बाइट, राइट, यहाँ पे आपका 1 बाइट रहेगा, क्या रहेगा, 1 बाइट। अब ये 1 बाइट है या 5 बाइट है या 8 बाइट है, राइट, ये डिपेंड करता है आपके CPU मॉड्यूल के ऊपर। ये आपका CPU मॉड्यूल बताता है आपको कि आपका यहाँ पे कौन सा बाइट आने वाला है। यू कैन नॉट डिसाइड, ओके, यू आर नॉट अ पर्सन टू डिसाइड कि यहाँ पे कौन सा बाइट आने वाला है। वी कैन जस्ट ऑब्जर्व एंड यूज दोज एड्रेसेस, वी कैन नॉट चेंज इट। लेकिन मॉड्यूलर के केस में इट विल बी I0 ऑनवर्ड, यू कैन यूज द एड्रेसेस। तो अभी इसका एड्रेस क्या रहेगा फिलहाल के लिए, वी आर जस्ट कंसिडरिंग दिस इज 1 बाइट। सो नाउ योर एड्रेस for this will be just a minute, this is 1.0, right, 1.0, and what type of is this, this is hello, okay, hello indicator. So likewise you have to provide addresses। ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा टर्मिनल किधर कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉट मैटर एट ऑल। ओके ओके, बट
अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो प्रोजेक्ट के केस में हम डायरेक्टली इस तरह के कनेक्शंस वगैरह स्कीमेटिक में नहीं बनाते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा शीट बनाते हैं। डेटा शीट जैसे कि एक स्टूडेंट है हमारा फुल कोर्स में, 4 मंथ का फुल कोर्स है, जिन्होंने एक डेटा शीट बनाया था, मतलब इक्विपमेंट लिस्ट वगैरह। लेट मी शो इट। ओके, उनका ये टास्क है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, ये क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट्स है, फुल कोर्स में प्रोजेक्ट लिए जाते हैं मैक्सिमम। क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने ये स्कीमेटिक वगैरह बनाया है प्रॉपर। अभी यहाँ पे देखिए, यू कैन जस्ट चेक इट कि यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर मेंशन किया कि क्या क्या इनपुट चाहिए, राइट। जैसे कि रोटरी स्विच है, उसका पर्पस क्या है, वो कौन से कैटेगरी में आता है, उसका एड्रेसेस क्या है, राइट। एवरीथिंग दे हैव मेंशन इट प्रॉपरली। ओके, तो अभी इनकम्प्लीट है, दे आर वर्किंग ऑन इट, वो काम कर रहे हैं अभी इस पर। लेकिन जब भी आप करेंगे, राइट, सो व्हेन यू विल प्रिपेयर, तो सबसे पहले डेटा शीट बनाना है। डेटा शीट के अंदर इनपुट आउटपुट टर्मिनल आपको फाइनलाइज करने होते हैं। फाइनलाइज करने के बाद फिर यू कैन गो फॉर द स्कीमेटिक। तो इस तरह का स्कीमेटिक आपको आपके क्लाइंट को भेजना होता है, जो भी जितना भी बड़ा स्कीमेटिक क्यों ना हो, राइट। तो वो स्कीमेटिक से कोई भी कनेक्शन कर लेता है, ओके, कोई भी कनेक्शन कर लेता है। लेकिन मेक श्योर दैट कि आपके सिंबल जो है रियलिस्टिक होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे टर्मिनल समझ में आ रहा है कि जब आप सेंसर देखेंगे पीएनपी तो उसको 3 टर्मिनल होते हैं। तो कौन से 3 होते हैं? तो ये 3 होते हैं। कलर भी यहाँ पे मेंशन है। इससे प्रैक्टिस हो जाता है काफ़ी हद तक, और एक टाइम ऐसा जाता है कि सब चीज़ें दिमाग में फिट हो जाती है, ठीक है, प्रैक्टिस से। ओके, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे आउटपुट के एड्रेसेस भी देख लिए। सो नाउ कमिंग टुवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि अक्सर हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के वक्त। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे रियल इनपुट्स हैं, जिसके लिए वी आर यूजिंग द आई एज अ इनपुट सिंबल, और हियर इज द आउटपुट सेक्शन, जिसके लिए हम क्यू यूज कर रहे हैं, क्यू एज अ आउटपुट सिंबल। लेकिन इसके अलावा हम प्रोग्रामिंग में और भी चीज़ें यूज करते हैं। और भी चीज़ें मतलब क्या? जैसे कि लेट मी प्रेजेंट द स्क्रीन। ओके, अभी एक चीज़ बहुत कॉमन है, जैसे कि हमने देखा कि हमने एलईडी कनेक्ट किया, राइट, हमने सेंसर्स कनेक्ट किया, हमने लिमिट स्विच कनेक्ट किया। लेकिन जो भी आपका सेंसर है, जो भी आपका एलईडी इंडिकेटर है, उसका और मतलब इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं है, राइट। मतलब ऐसे नहीं है कि हमने जो स्टार्ट पुश बटन कनेक्ट किया है वो आपके फर्स्ट एलईडी को कनेक्टेड है, नॉट लाइक दैट। ओके, जैसे कि जस्ट अ मोमेंट। ओके, जैसे कि कभी कभी कुछ इस तरह का कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ, मैंने अभी इसको 0 टर्मिनल को कनेक्ट किया हुआ है, सो आई हैव कनेक्टेड दिस स्टार्ट पुश बटन टू द 0 टर्मिनल। So whatever the things which I will connect to the 0 terminal, that will be automatically interface. No, not at all. यहाँ पे इनपुट कनेक्शन का और आउटपुट कनेक्शन का कोई इंटरनल कनेक्शन नहीं होता है। These are the separate connections. Okay, जैसे कि नॉर्मली हम पुश बटन का एलईडी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं। जब पुश बटन प्रेस करते हैं तो एलईडी ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह का कनेक्शन नहीं है। जब हम कंट्रोलर यूज करते हैं तो कंट्रोलर में जो कनेक्शंस होते हैं, तो एवरीथिंग इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोग्राम में आप जिस तरह से लॉजिक डिजाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही ये आउटपुट ऑन ऑफ होने वाला है। सो लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जब हम ये पुश बटन प्रेस करेंगे, विच वन, वेट, ओके, जैसे हम होल्ड ऑन, जैसे हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद हमारा ये जो येलो इंडिकेटर जो है वो ऑन होना चाहिए। ये हमारा टास्क है। ओके, सो व्हेन वी प्रेस दिस, सॉरी, लेट मी जस्ट मेक अ करेक्शन। ओके, सो व्हेन यू प्रेस दिस स्टार्ट पुश बटन, दिस येलो इंडिकेटर शुड टर्न ऑन, राइट। ये हमारा टास्क है। तो उसको कंप्लीट कैसे करना है? जैसे कि नॉर्मली एक स्ट्रक्चर होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, वो स्ट्रक्चर आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा क्विकली। Just a moment, let me add one more slide here. Okay, so now slide is added. Okay, so let us go to the presentation. अभी देखिए, तो अभी
when we press the start push button, this yellow indicator should turn on. This is our task. Okay, so first of all, so when you open the software, you are getting the number of networks. अभी Siemens के केस में इसको नेटवर्क बोला जाता है, राइट? अगर दूसरा कोई पीएलसी है तो उसमें रंग बोला जाता है, डेल्टा है तो स्टेप्स बोले जाते हैं, अलग अलग नाम है, राइट? लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है, सीखना ही पड़ता है. ऐसे नहीं कि Siemens का मतलब बाकी के पीएलसी आपको आने लगेंगे. दिस विल नॉट हैपन. देयर आर सो मेनी चेंज, देयर आर सो मेनी थिंग्स नीड टू लर्न व्हेन यू स्विच टू द अदर पीएलसी. जब आप बाकी पीएलसी को देखते हैं तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, काफ़ी चेंजेस होते हैं, वो सीखना ही पड़ता है डिटेल में, तभी वो चीज़ समझ में आती है. लेकिन इतना टाइम नहीं लगता है, राइट? काफ़ी जल्दी आप सीख सकते हैं. ओके, जैसे कि देखिए अभी यहाँ पे जो स्टार्ट पुश बटन जो उन्होंने क्या बोला, एनो कॉन्टैक्ट, राइट? सो हियर इट विल बी द एनो कॉन्टैक्ट. एनो मीन्स नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट. ओके, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट. यहाँ पे हमने नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लिया है, लाइक दिस. ओके, दिस इज द नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट. और ये जो हमारा आउटपुट जो है, दिस इज द आउटपुट, और ये हमारा आउटपुट कॉइल होता है. दिस इज द आउटपुट कॉइल एंड दैट सिंबल इज ऑलरेडी अवेलेबल इन TI पोर्टल और इन ऑल द पीएल्स, लाइक दिस. ओके, लाइक दिस. Okay, yeah, here it is. Got it? So how to make a connection? So simply you have to put the address. So here your address will be, जैसे कि हम यहाँ पे भी कनेक्शन कर रहे हैं, I0.1 is the start push button. This is our start push button, right? This is our start push button. और यहाँ पे जो हमारा आउटपुट का एड्रेस रहेगा, this will be this. मीन्स कहाँ पे वो एड्रेस, ये वाला एड्रेस. ओके, Q1.0, Q1.0. दिस इज द येलो इंडिकेटर, राइट? दिस इज येलो इंडिकेटर. दिस इज सिंपल थिंग विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मीन्स व्हाट, व्हेन यू विल बी इन रनिंग मोड, this vertical line, this complete vertical line is, we can see it rung or network also, right? Number of networks, number of rungs. Okay, we can see it rail. This is the rail. We can see it power rail. Let me delete this. This is the power rail. Yes, this is power rail. We can see it. Power rail. मतलब when you will be in running mode, the power start flowing through this rail. Okay, these are the rail. Okay, इसके थ्रू पावर फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. ओके, पावर यहाँ पर भी आ जाता है, लेकिन यू कैन सी दिस इज नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट. This power will be passed to the output coil only when you press it. So when you press it, this will be green and power will pass to the Q1.0. मतलब आपका जो येलो इंडिकेटर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, मतलब ये ऑन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा. मतलब जो भी आप कनेक्शंस करते हैं, कनेक्शन के अकॉर्डिंग आपके इनपुट आउटपुट ऑन नहीं होने वाले. प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपके जो आउटपुट है वो ऑन ऑफ होंगे, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने इस इनपुट से इस पर्टिकुलर आउटपुट को क्या किया, ऑन किया है. दिस इज सिंपल थिंग, राइट? ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम नेटवर्क्स भी बोलते हैं, रंग भी बोलते हैं, राइट? पर्टिकुलरली, राइट, नेटवर्क्स, और इसको रंग भी बोला जाता है. ठीक है, ओके. और ये हमारा आउटपुट कॉइल है. दिस इज आवर आउटपुट कॉइल. ये सिंबल मैं आपको बताऊंगा जब हम ओपनिंग प्रोसेस वगैरह देखेंगे. ओके, दिस इज आउटपुट कॉइल. तो अभी आप देखिए ये जो एड्रेस है, जो, लेट मी क्लियर सम इंपॉर्टेंट पार्ट बिफोर कमिंग टूवर्ड द सॉफ्टवेयर एंड ओपनिंग प्रोसेस. ये जो I जो है, I एंड दिस Q, ये हमारे रियल एड्रेसेस है. क्या है ये? रियल इनपुट आउटपुट एड्रेसेस. जस्ट कीप इन माइंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. These are the real input output addresses. Why I'm telling you this thing, because along with these real addresses we need some dummy addresses also. Dummy addresses. So what do you mean by dummy addresses? Okay, जैसे कि let's come back to the previous slide. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डमी एड्रेसेस जो होता है, लेट मी जस्ट डमी एड्रेस. ओके, डमी बिट्स भी बोलते हैं, डमी बिट्स. ओके, तो उसका मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर फेमिलियर विद द मेमोरी बिट्स. ओके, मेमोरी बिट, लेट मी राइट द मेमोरी बिट. मेमोरी बिट, ये हमारा क्या है, एक मेमोरी बिट होता है. अभी मेमोरी बिट
आपका जो एड्रेस है वो करेगा M0.0, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राइट, M0.0, गेटिंग। तो सेम थिंग, एग्जैक्ट सेम थिंग, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे सिर्फ M आ चुका है। M स्टैंड्स फॉर मेमोरी, M का मतलब होता है मेमोरी, राइट, दिस इज मेमोरी, ओके, एंड द रेस्ट ऑफ the things are exactly same, means this is the byte, I'm again telling you, this is bit, okay. The same way the next address will be M0.1, exact same, nothing will be different. Next M0.2, and at last your address will be M0.7, M0.7, getting, means total you can see total 8 memory addresses. How many? 8 memory addresses. So now what is the purpose of using these memory addresses? तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम लॉजिक वगैरह डिजाइन करते हैं, और लॉजिक डिजाइन करते वक्त हमें कुछ एड्रेसेस लॉजिक में चाहिए होते हैं, वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज द रियल आउटपुट एड्रेसेस ओवर दियर, राइट, बिकॉज नंबर ऑफ कंडीशंस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक फिलिंग ऑपरेशन है, राइट, तो फिलिंग ऑपरेशन के लिए आप एक सोलेनॉइड वॉल यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एक्चुएटर होता है, अब सोलेनॉइड वॉल यूज़ कर रहे हैं, एंड सोलेनॉइड वॉल को हमें 6 से 7 बार हमें क्या करना है, ऑन ऑफ करना है। तो उस केस में वी वांट द टाइमर्स एंड सम मेमोरी बिट्स। तो मेमोरी बिट हम कलेक्ट करके नीचे एक सेपरेट कंट्रोल लॉजिक डिजाइन करते हैं, सो दैट द कंट्रोल वॉल विल ऑपरेट प्रॉपरली। तो आगे हम वो एग्जांपल लेने वाले हैं सब इंडस्ट्री एप्लीकेशंस, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू राइट नाउ हाउ इट विल बी। तो मेमोरी बिट वहाँ पे हेल्पफुल होता है। जैसे कि मैक्सिमम केसेस में ये हम सोचते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी ये हमारा पुश बटन है, राइट, एवरीवन नोज द वर्किंग ऑफ पुश बटन, व्हेन यू प्रेस इट पावर स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू the rung network and the yellow indicator will turn on, right। लेकिन जब आप इसको रिलीज करेंगे तो ये क्या करेगा, पावर को डिस्कनेक्ट करेगा। क्या करेगा, पावर को डिस्कनेक्ट, और आपका येलो इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको होल्ड करना है तो इसके लिए होल्डिंग ऑपरेशन होता है। मैक्सिमम पीपल नो दिस पार्ट कि हम होल्डिंग ऑपरेशन डिजाइन करके फिर येलो इंडिकेटर को प्रॉपरली ऑन रख सकते हैं, और ऑफ करने के लिए हमें स्टॉप पुश बटन यूज करना होता है। लेकिन ये एक सिंपल टास्क हुआ। What about the इंडस्ट्री एप्लीकेशंस? वहां पे जब आप स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हो तो यू आर एक्सपेक्टिंग दैट कि कंप्लीट प्लांट आपका ऑफ होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि स्टॉप पुश बटन यूज किया तो ये ऑटोमेटिकली प्लांट को ऑफ करेगा। नो, दिस विल नॉट हैपन। एवरीथिंग शुड बी एडेड इन योर प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग में आपने वो प्रोविजन अगर नहीं रखा है तो स्टॉप पुश बटन प्रेस करने के बाद भी आपका प्लांट ऑफ नहीं होने वाला। तो उसके लिए हमें एक पावर्ड मोड बनाना होता है। क्या बोलते हैं उसको हम, पावर मोड। तो पावर मोड के लिए क्या करेंगे, जैसे कि लेट मी शो यू क्विकली हाउ इट विल बी। व्हाट इज दिस, वेट, आई थिंक नो स्ट्रेट लाइन हियर, एनीवे, ओके। सो नाउ हियर we are adding the NO contact here, one normally close contact, one output coil, okay, and this is the holding operation we are doing right now, okay। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ किया है, ओके। लेकिन प्रोग्रामिंग के अगर आप फील्ड में नॉर्मली क्लोज कनेक्शन कर रहे हैं फॉर द स्टॉप पुश बटन, तो प्रोग्रामिंग के अंदर वो नॉर्मली क्लोज नहीं रहेगा, वो नॉर्मली ओपन रहेगा। ये चीज़ काफ़ी हद तक हम भूलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो अभी मैंने ये जो नॉर्मली क्लोज कंसिडर किया है, मैंने स्टार्ट पुश बटन को नॉर्मली क्लोज कंसिडर किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ किया है। अगर आप फील्ड पे एनसी कनेक्शन कर रहे हैं फॉर द स्टॉप पुश बटन, तो यूर कॉन्टैक्ट विल बी इन प्रोग्रामिंग पार्ट, प्लीज नोट इट समवेयर, ओके। क्योंकि यहाँ पे मैं जो आपको प्रोग्रामिंग बताने वाला हूँ वो रियल टाइम प्रोग्रामिंग ही रहेंगी, ओके। तो जो भी मैं कॉन्टैक्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज स्टार्ट पुश बटन, जिसको मैं स्टॉप पुश बटन के तौर पे यहाँ पे ले रहा हूँ, ओके। या सो जैसे कि अभी नीचे भी लॉजिक है, जैसे कि यहाँ पे एक इनर कॉन्टैक्ट में ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक टाइमर ले रहा हूँ। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, ओके। दिस इज टीपी टाइमर, पल्स टाइमर इसको हम बोलेंगे, ठीक है, लाइक दिस। ऐसे बहुत सारे टाइमर्स यहाँ पे हैं, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ओके।
यहाँ पे मैं इस तरह से छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसके आगे आप चाहे तो आउटपुट वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज अलाउड इन सीमेंस, ओके। क्योंकि बाकी पीएलसी में टाइमर के बाद कुछ कनेक्ट ही नहीं कर सकते, लेकिन सीमेंस के अंदर वो प्रोविजन है। आई विल शो यू व्हेन वी विल स्टार्ट, ओके ओके। जैसे कि यहाँ पे और कुछ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, टाइमर की बीट है फॉर एग्जांपल, ओके। जैसे बीट मतलब यह, जैसे कि आप यहाँ पे कोई मेमोरी एड्रेस यूज़ करें, जैसे कि मैं यहाँ पे आउटपुट कॉल यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट कंसीडर, ओके, लेट मी इरेज अदरवाइज, यस। यहाँ पे मैं कुछ आउटपुट ऐड कर देता हूँ, आउटपुट कॉइल्स, दिस इज अलाउड, ओके, या। And what we are going to do, we are going to connect some contact like this of timer, और यहाँ पे मैं एक आउटपुट कनेक्ट कर देता हूँ, दैट इज रियल आउटपुट। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था कंट्रोल वॉल का, राइट। तो हियर आई एम पुटिंग द नेम, दैट इज द कंट्रोल वॉल, वेट, कंट्रोल वॉल, ओके, दिस इज द कंट्रोल वॉल, इसको हमें कंट्रोल करना है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, राइट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एड्रेस दे रहा हूँ I0.0, ओके, I0.1। अभी मैं ये सिंबल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये सिंबल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं रैंडम यहाँ पे बता रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे I0.0, I0.1 हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सो व्हेन यू प्रेस दिस बटन, the power which you are providing to each and every network that should be interrupted, वो interrupt होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंट्रोल वॉल को कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कंट्रोल वॉल को कनेक्ट करेंगे तो योर कंट्रोल वॉल विल टर्न ऑन इमीडिएटली, लेकिन हमें उसको कुछ प्रोसेस थ्रू ऑन करना है, कुछ कंडीशंस है उसके लिए, मतलब 5 सेकंड के बाद ऑन होगा, फिर 10 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, फिर 10 सेकंड के बाद फिर से ऑफ होगा, फिर से ऑन होगा, राइट। दीज आर द नंबर ऑफ कंडीशंस, राइट। तो यहाँ पे वी डोंट नीड टू इंटरप्ट द ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल वॉल, दैट इज द रीजन यू कैन गो विथ मेमोरी एड्रेस M0.0, क्योंकि ये जो मेमोरी एड्रेस जो होता है, यू कैन यूज दिस मेमोरी एड्रेस एज अ इनपुट एंड आउटपुट। इसे आप इनपुट और आउटपुट भी यूज कर सकते हो, राइट, इनपुट और आउटपुट, ओके। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं सेम एड्रेस यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसको बोला जाता है होल्डिंग ऑपरेशन। इसे क्या बोला जाता है, होल्डिंग ऑपरेशन। होल्डिंग ऑपरेशन मीन्स व्हाट, यू हैव टू कनेक्ट द मेमोरी एड्रेस और आउटपुट एड्रेस इन पैरेलल विद इनपुट एड्रेस। तो यहाँ पे कोई भी एड्रेस हो सकता है, रियल, डमी एड्रेस, दैट डजंट मैटर। आउटपुट के एड्रेस को इनपुट के पैरेलल में कनेक्ट कर देना है, दिस इज नोन एज होल्डिंग ऑपरेशन। इसको क्या बोला जाता है, होल्डिंग ऑपरेशन, ओके। तो होल्डिंग ऑपरेशन के अलावा सीमेंस के पास बाकी और भी इंस्ट्रक्शन है, जिसको हम सेट रिसेट भी बोलते हैं, ये भी है, आगे प्रोग्रामिंग में देखेंगे ये पार्ट। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके मन में भी रहेंगी, राइट। मैं ही बता देता हूँ खुद। तो अभी ये आपका क्या रहेगा, दिस इज आवर पावर मोड। ये आपका क्या रहेगा, पावर मोड, सॉरी, दिस इज योर, ओह व्हाट्स हैपनिंग, ओके, एनीवे जस्ट अंडरस्टैंड, दिस इज पावर मोड। तो ये यहाँ पर भी आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, M0.0, दिस इज द पावर मोड, राइट, पावर मोड, ओके। मीन्स व्हाट, when you press the button, let me demonstrate, when you press the button, power start flowing through this, and this memory bit will latch, and when you release it, okay, memory bit will be latch and will turn on, and when you release the push button, you can see the power, initially power start flowing through this, now power start flowing through this parallel branch like this। मतलब आपका जो पावर जो है वो होल्ड किया गया है, और आपका मेमोरी बिट क्या रहेगा, कंटिन्यूसली ऑन ही रहेगा। मतलब यहाँ पर भी क्या रहेगा, आपका पावर रहेगा आगे इस तरह से। अगर आपको इस पावर को डिस्कनेक्ट करना है तो व्हाट यू कैन डू, सिंपली यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस स्टॉप पुश बटन। इसको प्रेस करने के बाद इसका जो M0.0 जो इसका पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट किया जाता है, और ये M0.0 आपने जिस किसी नेटवर्क पे दिया हुआ है, मतलब इसको हम हर एक नेटवर्क पे प्रोवाइड कर, जैसे कि अभी यहाँ पे प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम टाइमर की बीट ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वेयर, लेट मी जस्ट स्विच टू द पेन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे हम टाइमर की बीट ही यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आपको यहाँ पे M0.0 प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। मीन्स पावर सप्लाई अगर यहाँ पे कट हो जाता है तो टाइमर विल बी स्टॉप और ये बीट भी काम करना स्टॉप कर देंगे, दिस बीट विल आल्सो नॉट वर्क, ओके, ये भी स्टॉप हो जाएंगे। तो ये जो मेमोरी बीट जो है आपको हर एक नेटवर्क पे प्रोवाइड करना है जिसको आपको स्टॉप करना है इमरजेंसी कंडीशन में, राइट। मतलब जब आप स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो इमीडिएटली जितने भी आउटपुट टर्मिनल है, आउटपुट डिवाइसेस है, वो एक साथ ऑफ होनी चाहिए। अभी इसके लिए मैन्युफैक्चरर ने बाकी इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं जो हम अक्सर क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, दैट इज दी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसमें MCR है, MC है, राइट, जंप एंड लेबल है, जंप इफ नॉट एंड लेबल है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए हुए हैं, राइट। तो मतलब प्रोग्रामिंग सीखना हमारा मोटिव नहीं है, प्रोग्रामिंग के साथ साथ आप क्लाइंट को एडिशनली क्या प्रोवाइड कर सकते हो, दैट इज अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। तो वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि किस तरह से प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे टास्क भी मिलेंगे, यू ऑल हैव टू रेडी फॉर दैट। टास्क का प्रिपरेशन करेंगे तो दैट विल बी बेटर, राइट। सो यू विल बी एक्सपर्ट एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, आई एम श्योर अबाउट दैट, ओके, या। तो अभी देखिए इनपुट एड्रेसेस के मेमोरी एड्रेसेस के साथ साथ आपको और भी मेमोरी एड्रेसेस मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि M0.0 to M0.7, राइट। सिमिलरली यू कैन कीप गोइंग लाइक दिस, ओके। बाइट चेंज होंगे, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चेंज होगा, ओके। सो लेट मी जस्ट कीप इट एंड yeah, just a moment, let me, what is happening, okay। तो अभी और भी एड्रेसेस हैं और क्विकली हम थोड़ा और टाइम लेंगे और एड्रेसेस का कुछ पार्ट यहाँ पे कवर कर लेंगे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। या जैसे कि अभी देख लीजिए यहाँ पे M0.0 to M0.7, right? Let me write few addresses, then I will tell you what is this 1.7, right, like this. Then M2.0 to M2.7, चाहे तो मैं नेक्स्ट सेशन में फिर से पार्ट कवर कर लूँगा बिकॉज इट टेक्स टाइम, या, ओके। So here I will be discussing about the memory world, right? और एक एड्रेस है दैट इज, चाहे तो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, फॉर नाउ वी विल स्टॉप, मेमोरी डबल वर्ड, ओके, मेमोरी डबल वर्ड, ओके। ये जो एड्रेसेस जो है, ये एड्रेसेस कैसे बनते हैं, राइट, क्योंकि जब हम इंस्ट्रक्शन सीखना स्टार्ट कर देते हैं तो यू कैन ऑब्जर्व द टू थिंग्स, 16-bit इंस्ट्रक्शंस एंड 32-bit इंस्ट्रक्शंस, ओके, दीज आर द टू थिंग्स यू कैन ऑब्जर्व। तो अभी इसमें से 32-bit का इंस्ट्रक्शन कब यूज करना है, 16-bit का इंस्ट्रक्शन कब यूज करना है, राइट, दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट थिंग। अलॉन्ग विद दैट पीएलसी के अंदर, किसी भी पीएलसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसमें डेटा टाइप इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट। डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप है, रियल है या इंटीजर है, राइट, फ्लोट है, अनसाइन है, साइन इंटीजर है, कौन से टाइप का डेटा टाइप आप यूज कर रहे हैं, राइट, बुलियन है, राइट। तो ये पार्ट जो है एड्रेसेस का हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे प्रॉपरली, ओके। ये पार्ट होने के बाद वी विल डिस्कस अबाउट द ओपनिंग प्रोसेस, ओके। ओपनिंग प्रोसेस होने के तुरंत बाद हमें कुछ रूल्स देखने हैं, इफ पॉसिबल आई विल एक्सप्लेन द रूल इन PPT itself and then we will go for the opening process, okay। मेरे हिसाब से अगर बेसिक आपका प्रॉपर क्लियर हो जाता है तो मेरे लिए आगे की जो चीज़ें हैं वो पढ़ाना इजी हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो फॉर नाउ वी विल स्टॉप हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।